26th, our continuous webinar on Zoom meeting. We started this program with the help of PMA and Pakistan Association of Pathologists, Women Medical College, Ahmedabad, and Muzaffarabad Medical College. Before starting today's sessions and introduction of Dr. Altaf, I will request Professor Rashid Saab to recite the Holy Quran. Professor Rashid Saab. Shukriya, sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Wallazi yumituni summa yuhyin. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. तर्जुमा, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो तू मुझे शिफा बख्शता है, और वो जो मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे गुनाह बख्शेगा. ऐ परवरदिगार, मुझे इल्म और दानिश अता फरमा और नेककारों में शामिल कर. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Jazakallah. Professor Altaf is a renowned teacher, and he is nowadays working as PKLI Lahore, and he is introducing different aspects how to control the infections. So I'm very thankful, Professor Altaf, giving us the time. We know that your time is very precious. I have seen you in PKLI, how you are busy, and thank you very much. Today's topic is value of the infectious control. It is very, very important. And we all know that how the antibiotic stewardship in our hospitals nowadays. We know that how we are developing the antibody resistance to the antibodies, biotics and other things. Professor Altaf, your audience are consultants, professors, basic sciences, clinical sciences, and I have today also asked some of my students, third year MBBS from the AJKMC. They will also join you. And I hope your today's lecture will help us in understanding about the value of infection control and the use of antibiotics, and what will be the our future strategy in this plan. Thank you very much, Professor Altaf. Now it is over to you. Thank you, मुलाजिम साहब, और बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे कॉलीग रहे हैं प्रोफेसर मुलाजिम. मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में रहा. Sorry, I will use English and Urdu frequently क्योंकि सारे national लोग हैं. Sure. Some of the people are from Saudi Arabia, but they can understand the Urdu. You can speak in Urdu, sir. Okay. Thanks. Dr. Mujib here. Thank you. I will request other people to mute their mics. Please mute your all mics. Thank you so much. Professor Altaf. So I've been working in various hospitals of Pakistan, some of the large hospitals like Aga Khan, Ziauddin, Liaquat National, and lastly Indus Hospital, and now in Pakistan Kidney and Liver Institute. And I was called to talk about and prevent infection among transplant patients, and that was a nightmare. But I took it as a challenge कि yes, पाकिस्तान में हो सकता है अगर हम कोशिश करेंगे.
So why not? So कुछ तजुर्बात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं और मैं चाहता हूं कि अपने कलीग से शेयर करूं। बहुत अच्छा हुआ आपने स्टूडेंट्स को शामिल किया, बिकॉज ये वो लोग हैं जो आगे जाके हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे। So start with the value of infection control and antibiotic stewardship in our hospitals. And सेशन का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इसके बाद आप यू विल बी कोरिलेटिंग AMR and IPC, antimicrobial resistance and infection prevention control. Describe its causes and what collateral damage occurs because of broad spectrum antibiotics. What is the importance of diagnostic stewardship and the role of infection prevention control. तो एक कॉम्बिनेशन चीज है, अगर हम इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह बहुत फायदा हो हमारे मुल्क को और हमारे मरीजों को। To start with this slide, infection control, there was a meta-analysis which shows the antibiotic stewardship program reduces the incidence of infection and colonization with MDROs, जो जिसका मसला है अब हमारे पास कार्बापेनम और कोलेस्टीन के अलावा कुछ बचे ही नहीं, या तो हम वैनकोमाइसिन पे आ चुके हैं या पुरानी एंटीबायोटिक्स को ढूंढ रहे हैं कि फॉस्फोमाइसिन से हम काम चला लें। सिचुएशन इज नॉट दैट गुड, लेकिन एंटीबायोटिक स्टोरशिप प्रोग्राम जहाँ जहाँ मुल्क में और दुनिया में शुरू हुआ is really affecting. And together with antibiotic stewardship program, when we implement infection prevention and control measures, simple steps like interventions like hand hygiene and other precautions, there's a marked change in antimicrobial resistance or treating the patients. And that's why we call it a spread decops, means together we can do it. In my perception, hospitals without antibiotic stewardship and without infection control programs is just like bucket with a hole, and they are draining their resources out. I've seen and visited many government hospitals. They haven't got enough funds, लेकिन enough funds के बाद उसका outcome नहीं आता. So they treat thousand and thousand. में हॉस्पिटल गया, उसने कहा हमारे यहाँ 4000 मरीज रोज आते हैं. So we do a lot of work. मैंने कहा of course you do a lot of work, लेकिन उन 4000 मरीजों का आउटकम क्या होता है पहले ये बता दे मुझे, या जो सैकड़ों लोग एडमिट हो रहे हैं या आईसीयू में जा रहे हैं उनका आउटकम बताएं. Don't tell me numbers, tell me the outcome. That is the problem. और इस फिर हमारे रिसोर्सेज खुद ब खुद कम होने शुरू हो जाते हैं because we don't implement the things we should have implemented. So once again, in infection control and antibiotic stewardship are the two strategies to combat antimicrobial resistance. Because whenever there is no transmission of infection, there is no need of antimicrobial treatment. So resistance bhi khud ba khud kam ho jayegi. So prevention is better than cure and prevention is cheaper than cure. We should remember that. लेकिन हमारी negligence है उस तरफ. In terms of for students, antimicrobial stewardship is good. Antimicrobial stewards involves selecting an appropriate drug, optimizing a dose and duration to cure an infection while minimizing toxicity and condition for selection of resistant bacteria. तो इन टोटल ये देखा जाए कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स, उसके दूररस नताइज, उसकी टॉक्सिसिटी and conditions for selection of resistant bacteria भी हमें देखना है. हमने इस तरह की बहुत सारी गलतियां माजी में की हैं एंटीबायोटिक यूज करके, लेकिन उसका जो असरात हैं वो अभी तक हम फील कर. सो चैलेंजेस बहुत है हमारे मुल्क में, चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है, बट वी हैव टू गो थ्रू दीज चैलेंजेस कि हमारे चैलेंजेस है क्या. राइट फ्रॉम द बेसिक्स, God knows when this will be finished, how long it's going to take. But fortunately, unfortunately, we have got a lot of problem with basics: sanitation, clean water supply, and hygiene. So water, sanitation, and hygiene, जिसको wash भी कहते हैं, is the main problem in developing countries like ours. इसकी वजह से बहुत बुरे हालात होते हैं और फिर लोग मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, हेल्प करने की करते हैं, बट इट डजंट पे. और फिर ये सारी चीज़ें, यू नो, रिमेंबर द XDR टाइफाइड इन हैदराबाद जो इस तस्वीर में नजर आई. वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, contaminated water. And then what we do,
This is one of the streets in Karachi, and similarly in other parts of the countries. हमने क्या किया है, हमने और हम करना क्या चाह रहे हैं? These kind of pictures are everywhere, और ये reality है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते. These things are with us. और प्रॉब्लम क्या होती है? एज ए रिजल्ट हम 4 जनरेशन देख चुके हैं, टीबी, टाइफाइड, मलेरिया एंड डायरिया, एंड नथिंग इज गॉन. It's becoming more and more worse to treat, difficult to treat. XDR TB, XDR typhoid, resistant malaria and diarrheal cases. So whether it's starting from the Dadaji to the Potaji, things are bad, things are not going good. So we have that big challenge with us. और इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम responsible होते हैं, prescribers, patient and pharmacists, all are responsible. हमें खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को पैदा कर रहे हैं बाय फाइटिंग दीज कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड द वे वी ट्रीट इट, एक्स वाई एंड जेड, you all know about that, and there's plenty of quacks also, thousands of quacks in Pakistan working as doctors. वो अलग प्रॉब्लम है. सो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो बढ़ना है, और उसके साथ जो चीज़ें हमारे पास हैं, ड्रग्स हैं, मगर उसकी क्वालिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है, कोई मॉनिटरिंग सर्वेलेंस नहीं है. हम सेल्फ एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक्स पे बहुत हर घर में चल रही है. सो मल्टीपल इश्यूज. मिरेकल ऑफ एंटीबायोटिक्स जो किसी ज़माने में था, लुक एट दी रेड लाइन, मोर्टेलिटी कितनी ज़्यादा थी अर्ली 19th सेंचुरी में, एंड देन लेटर ऑन mortality went down and down because of the Alexander Fleming और दूसरे लोगों ने जो एंटीबायोटिक इजाद की, उसके बाद बहुत फर्क पड़ा. But that magic bullet of antibiotics is no more. We are using, and the reason is with us, we are using a lot of antibiotic, and Pakistan, you can see, is one of the highest user of carbapenems per gram negatives. So बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं इन चीज़ों से. नाउ न्यू एंटीमाइक्रोबियल्स आर नॉट कमिंग, एंड लुक एट द रेजिस्टेंट रेट इज राइजिंग, और नई एंटीबायोटिक बनती नहीं है, एंड वी आर स्टक समवेयर हियर. सो वी डोंट नो व्हाट टू डू. सो सिचुएशन ये है कि हम जो भी चीज़ करें, आइदर यू डू ए ट्रांसप्लांट और यू डू कैंसर कीमोथेरेपी, इंटेंसिव केयर, आपको तो एंटीबायोटिक चाहिए, लेकिन अगर आपने एंटीबायोटिक को इतना रेजिस्टेंट कर दिया तो फिर आप किधर जाएंगे और क्या करेंगे? सो हमें क्या करना चाहिए, ये सोच की बात. लॉन्ग टाइम अगो आई रिपोर्टेड अ कोलिस्टीन रेजिस्टेंस बग इन पाकिस्तान. सो कोलिस्टीन which is now mostly used in hospitals. Situation is on AMR, Dr. Afrinish ने बताया NIH से कि we have got all kind of problems molecular level पे जिससे हमें drug resistance pathogens. लोग कहते हैं evidence दिखाओ. So this is the evidence. Look at the Pseudomonas, Klebsiella, and E. coli. And look at the number of XDR we report in Pakistan. This is really alarming that more than 50% of our common bugs are now resistant, showing XDR activity. Look at the OXA48 and NDM producers bugs, India and Pakistan, and is spreading throughout the world. But we are the hub of these activities. So the evidence is there. कोई ये नहीं कह सकता कि जी हमने कुछ नहीं किया या हमारे यहाँ कुछ नहीं है. हमारे यहाँ है. If you look around, you will find it. Look at the carbapenem resistance, one of the wonder drugs of these years, and look at the imipenem, meropenem resistance in common organisms. And Acinetobacter, that is become a nightmare for hospital physicians. इसको treat करना इतना मुश्किल हो गया. is even more than 75% resistance you can see in this bug of carbapenems. So this is the problem. Resistance has huge negative impact on health. उसकी वजह से क्या होता है? Longer duration of illness, longer treatment, high mortality, और treatment with expensive drugs. लोगों के मतलब कारोबार बिक जाते, इतनी महंगी दवाएं हैं. बर्डन ऑन हेल्थ सिस्टम, जो पहले ही हमारा हेल्थ सिस्टम हमेशा से वीक रहा है, उसको और मुसीबत आ जाती है. रिजर्वायर बढ़ जाते हैं. इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पर्सनल इम्पैक्ट मरीज पे और उसके लवाहिकीन पे और कंट्री पे, दोनों पे, और जो डोनर बेस्ड हॉस्पिटल है उनके ऊपर.
इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसका रेजिस्टेंस का, पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट. सो चैलेंजेस, आई कैन गो ऑन फॉर आवर्स, बट अगेन वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. हम बैठ नहीं सकते इसके लिए. So we have to rationalize the use of available antimicrobials. और जो इमर्जिंग रेजिस्टेंस है उसको हमने रोकना है, कंट्रोल करना है बाय इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. हम डिस्कवरी तो नहीं कर सकते, हमने कोई आज तक कोई एंटीबायोटिक बनाई नहीं मेरी मालूमात की हद तक. एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन कि वेस्ट हमें कोई बना के एंटीबायोटिक देगा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे. दैट इज द प्रॉब्लम. सो हमें शुरू करना चाहिए एंटीबायोटिक स्टूअरशिप प्रोग्राम अपने तमाम हॉस्पिटल्स में, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. चैलेंजेस आएंगे आपके पास, बट यू हैव टू डू इट समडे और दैट. लेकिन सबसे बड़ा मसला टीम वर्क का है. लोग कहते हैं हमारे पास टीम है, अस्पताल में होते हैं, सब होते हैं, मेडिकल स्टाफ भी होता है, फार्मासिस्ट भी होता है, नर्सेज भी होती हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होता है, लेकिन टीम वर्क नहीं नजर आता. बट फॉर एंटीबायोटिक स्टूअरशिप एंड इन्फेक्शन कंट्रोल यू गॉट टू हैव ऑल द टीम टुगेदर and gel them together to do one big task to reduce the antibiotic resistance and make use best of your antibiotics. इन सारे लोगों के बगैर, इसमें नर्सेज भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब वाले भी हैं, सब सारे लोग मिलके इस पे जब तक काम नहीं करेंगे, टू स्टार्ट विथ वी नीड दैट टीम वर्क. दो कंपोनेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देयर आर अदर्स, द प्रोस्पेक्टिव ऑडिट विद इंटरवेंशन एंड फीडबैक ऑन एंटीमाइक्रोबियल यूज्ड और फॉर्मुलरी रेस्ट्रिक्शन एंड प्री ऑथराइजेशन. ये भी हम अपने इदारों में करते हैं और बहुत सारे अच्छे इदारों में ऐसा हो रहा है, एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है, बट नॉट ऑन लार्ज स्केल. वी गॉट टू बिलीव ऑन एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग और हमें डोज ऑप्टिमाइजेशन, डी एस्केलेशन, IV टू ओरल, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन से ही पूरे अस्पताल में शुरू कर दें. स्टार्ट बाय वन, सेलेक्ट अ यूनिट से ICU को आप ले लें और वहां से काम शुरू करें. यू विल गेट सम रिजल्ट्स, सम गुड रिजल्ट्स. एंटीबायोटिक्स आर मिस यूज इन हॉस्पिटल, ये इंटरनेशनल स्टडी है. और आप सोच सकते हैं, आप एक दिन निकल जाएं और हॉस्पिटल में देखें कितने लोग एंटीबायोटिक पे हैं और कितने नहीं है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा. एंड फॉर व्हाट. सो 50% से ज्यादा तो मैं कह सकता हूँ कि एंटीमाइक्रोबियल मिस यूज हो रही है. सिर्फ उस मिस यूज को रोकने से ही हमें बहुत फर्क पड़ जा रहा है. एंटीबायोटिक क्यों मिस यूज होती है? गिवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड, कंटिन्यूड व्हेन दे आर नो लॉन्गर नेसेसरी, गिवन एट रॉन्ग डोजेस. मैं देखा है 3-3 हफ्ते कार्बापेनेम चल रही है एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप इट, कि उसको चेंज तो कर दो, लेकिन वो एक दफा लिख दी और वो उसको मिल रही है, उस मरीज को पता भी नहीं. रॉन्ग डोजेज, बिलीव मी, कई स्टडीज हो चुकी है. एंटी-TB ड्रग्स की मैंने डॉक्टर जावेद के साथ स्टडी की थी आगा खान में, एंड न्यूली ग्रेजुएट डॉक्टर्स को बिल्कुल पता नहीं था मोर देन 70% के एंटी-TB ड्रग्स कौन सी होती हैं और उसकी डोज क्या होती है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट्स पे हम हमेशा बिलीव करते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं. सो रॉन्ग एंटीबायोटिक फॉर रॉन्ग इन्फेक्शन, तो हम एंटीबायोटिक को उस तरह पढ़ते ही नहीं है ना, शायद हम उसको पढ़ाते हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम विच मल्टीप्लाइज. सी डिफ एक बड़ा नाइटमेयर है जिनके पास होता है. बिलीव मी कि अगर मेरे ट्रांसप्लांट पेशेंट में सी डिफ हो तो कितना बड़ा नुकसान है मेरा. एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक एक्सपोजर. तो हमें उस पर नजर रखनी पड़ती है कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए, वरना लोग फ्लैजिल देके उसको बोलते हैं डायरिया हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाए. दिस इज द प्रॉब्लम. हम हमारी डायग्नोस्टिक्स इतनी कमजोर हैं बाज जगह पे. सो मोर्टेलिटी, कार्बापेनम रेजिस्टेंट वर्सेस कार्बापेनम ससेप्टेबल, एक मिसाल में दे रहा हूँ, देयर आर थाउजेंड्स, कि मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 50% का फर्क पड़ जाता है. सो रेजिस्टेंस को हमें कम करना है by proper use of antibiotic and antibiotic stewardship programs. इसके लिए क्या करना है? आपको एंटीबायोटिक समझना है. मैं समझता हूँ कि 15 से 20 एंटीबायोटिक अगर हमारे ग्रेजुएट्स पढ़ लें, हमारे डॉक्टर्स पढ़ लें, हम पढ़ लें, 15 से 20 एंटीबायोटिक हमने पूरी जिंदगी यूज करनी है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते कि उसकी PK/PD क्या है, कितनी डोज होनी चाहिए, क्या वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, वो कौन से टिश्यू में कौन सी एंटीबायोटिक. एक दफा अगर हम अच्छी तरह पढ़ लें इसको, 15-20 एंटीबायोटिक, दैट इज इट.
We got to know the site of infection. बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना जरूरी है, कौन सा बैक्टीरिया किस चीज से रेजिस्टेंट होता है या नहीं होता है, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंट है, सो आप उसको वो एंटीबायोटिक क्यों दोगे, और आपने जाहिर है पेशेंट के साइन सिम्टम्स को देखना है। तो पजल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी इतना मुश्किल नहीं है, इट ऑल नीड्स अ रियल एजुकेशन, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन। हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने डॉक्टर्स को पढ़ाना है कि कोलैटरल डैमेज भी कोई चीज होती है। अगर आप एक चीज ज्यादा यूज करोगे, लुक एट सेफलोस्पोरिन्स एंड किनोलोन्स, हमने बेतहाशा यूज की, और इसीलिए हमारे पास अस्पतालों में MRSA की भरमार है, हमारे पास MDR माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भरमार है, बिकॉज ऑल लैकिंग द एंटीबायोटिक थेरेपी इन अ डिसेंट वे, इन अ रैशनल वे। हमें ये नहीं पता कि कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक जगह पे वो काम नहीं करती। लोगों ने कहा जी, आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ऑफ डाइगीसाइक्लिन, वेरी कॉस्टली एंटीबायोटिक, अ गुड एंटीबायोटिक, आई मीन इसका स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा है, लेकिन गुड या बैड उस वक्त होगा जब उसको आप सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। आई मीन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर सूडोमोनास, it doesn't act on pseudomonas at all. So it may be good for other gram negative, gram positive, but not for pseudomonas. Similarly, glycopeptides, उसका अपना एक रोल है, carbapenems का अपना एक रोल है। So you have to understand, और इसकी तालीम बहुत बहुत जरूरी है। एंटीबायोग्राम, लोगों को मैं पूछता हूँ, लोगों को ये नहीं पता होता कि एंटीबायोग्राम क्या चीज होती है। इट्स अ लैब बेस्ड डाटा ऑन एंटीमाइक्रोबियल्स, उसकी सेंसिटिविटी पैटर्न। उसका फायदा ये होता है क्योंकि यू कैन मेक योर एंटीबायोटिक पॉलिसी। हर हॉस्पिटल का एंटीबायोग्राम डिफरेंट होता है। PKLI के एंटीबायोग्राम से आपको फायदा नहीं होगा, आपको अपना एंटीबायोग्राम अपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट से मांगना चाहिए। एंड दिस इज द रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कि वो आपको एक सही डाटा प्रोवाइड करे जिसकी बेस पे आपकी फार्मेसी चलेगी, जिसकी बेस पे आपकी फार्मा की प्रोक्योरमेंट होगी और एंटीबायोटिक पॉलिसी बनेगी। सो इम्पोर्टेंट टू रन एन एंटीबायोटिक स्टूवरशिप प्रोग्राम कि आपकी माइक्रोबायोलॉजी लैब स्ट्रांग हो और वो इस तरह के एंटीबायोग्राम आपको प्रोड्यूस करे, एटलीस्ट 6 मंथली या ईयरली डाटा आपके पास हो, ताकि आप देख सके कि इंट्रिंसिकली अगर आपको एम्पिरिकली कोई चीज यूज करनी है तो वो कौन सी एंटीबायोटिक होगी। सो यू नीड टू हैव एंटीबायोग्राम्स ऑफ योर हॉस्पिटल एंड यू शुड आस्क फॉर इट। इज नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू सैंपल, जैसे यहाँ पे यूरिन सैंपल का नजर आ रहा है। सो यू गॉट टू डू समथिंग टू गेट द रिजल्ट आउट। Nursing is a valuable source in hospitals and in community. वो एजुकेटर्स भी होती हैं, वो एडवोकेट्स भी होती हैं, वो एम्बेसडर्स भी होती हैं। बिहेवियरल चेंज में उनका बहुत बड़ा रोल होता है और वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं एंटीबायोटिक स्टूवरशिप प्रोग्राम में। इट्स नॉट ओनली डॉक्टर्स हु डू इट, सो इसको भी हमें सोचने की जरूरत है। फार्मासिस्ट शुड कम आउट ऑफ देयर फार्मेसी इन क्लिनिकल राउंड्स, जैसे कि अच्छे अस्पतालों में होता है, एंड दैट इज द की पर्सन इन बिटवीन दिस टीम ऑफ पीपल हु डू एंटीबायोटिक स्टूवरशिप। सो उनका बहुत बड़ा रोल है, उनको आगे आना चाहिए और क्लिनिकल फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। एंड दे कैन बी अ की रोल्स इन एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट एट द बेस्ट साइड। कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत है। आपको अंदाजा नहीं है कि लोगों के साथ और इस गुर्बत में, इस महंगाई में लोगों के साथ क्या हो रहा है। एंड इट्स रियली नाइटमेयर जब लोगों के पास कार्बापेनम के अलावा कोई चॉइस नहीं होती एंड दे कैन नॉट बाय कॉस्टली एंटीबायोटिक्स, और वो अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल फार्मूलेरी में। सो कॉस्ट फॉर द पेशेंट, कॉस्ट फॉर द फैमिली एंड द कॉस्ट ऑफ द लाइफ, उसको आप कैसे मेजर करोगे? मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कैसे मेजर करोगे? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर सकते, चैलेंज को फेस नहीं कर सकते। बहुत सारा हमारा बजट, लुक एट दिस स्लाइड, 35% ऑफ टोटल हेल्थ केयर बजट इज स्पेंट ऑन एंटीमाइक्रोबियल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा रिसोर्स ड्रेन होता है हमारा सिर्फ इस वजह से कि हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइबर्स हैं बट हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे जोर नहीं देते। Look at this slide from Dr. Sumayya and Nizamuddin from Shaukat Khanum. They worked hard. They worked hard from the early as 2011 and started doing rounds and strategies
for the appropriate use of antimicrobials. मैं पाकिस्तान की इसलिए एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं यूएस की और यूरोप की नहीं दिखा रहा कि हम भी कर सकते हैं और हमारे इदारों ने किया है, but we don't learn from each other. So by 2018, there were appropriate use of antibiotics, which was not misused or not abused. So they worked hard and they got the results. Look at the pharmacoeconomic analysis of what they did. The vancomycin consumption went down and saved a lot of rupees, about 30-40 lakh rupees per year. Similarly, meropenem consumption went down to 50%. And look at the amount of money they saved for their hospitals by appropriate using, not by inappropriate using. So this is great. But this is one of the main factors for antimicrobial stewardship is diagnostic stewardship. Because without diagnostic, the role of microbiologist, we are sitting around from Karachi to Peshawar, we have got a big responsibility to support clinician in diagnosing clinical syndromes, to choose the best therapeutic option and to provide assistance. Oh, बाज लोग कहते हैं मुझसे कि यार वो हमारी बात नहीं सुनते डॉक्टर साहब। मैं कहता हूँ आपने उनको अपना डाटा तो दिखाओ, कभी कभी उनसे अपने एविडेंस बेस्ड आप डिस्कशन करो। You just can't tell anyone to do things without doing yourself anything. आप उनको ये तो बताओ बैक्टीरिया वायरस में क्या फर्क है, कहाँ पे फर्क आ जाता है। We got to have clinico-pathological meetings जो कि बहुत कम अस्पतालों में होती हैं। पैथोलॉजिस्ट लैब में बैठे हैं और क्लिनिशियन वार्ड में बैठे हैं, there is no interaction. Hardly 1 or 2 कभी होता है कि जी रिपोर्ट गलत आ गई है, हमने फलानी जगह भेजी थी, ये आया, आपने ये दिया। इस बात पे तो लड़ते हैं, but we don't come across so frequently. तो हम एक टेबल पे नहीं होंगे, एक पेज पे नहीं होंगे, so it's not, things are not going to work at all. यंग डॉक्टर्स को हम नहीं पढ़ाते हैं। मेरे पास यंग डॉक्टर्स आ गया था, कहता है कि 3 घंटे हो गए, कल्चर की रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। तो मैंने उसको समझाया, बेटे 3 दिन से पहले तो नहीं आ सकती। So I don't know how we are teaching our young generation. उनका कसूर नहीं, कसूर शायद हमारा है। Once एक और चीज है, हम ये नहीं समझाते कि garbage in garbage out, GIGO, a poor quality specimen generate useless results. इसमें भी you know that 60% of errors in lab is because of pre-analytical errors. हम गलत सैंपल हमारे पास आते हैं, हम गलत रिपोर्ट देते हैं, and that is not going to help anyone, or the patient has to pay for it or the government has to pay for it. इसको भी हमें ठीक करना चाहिए। Look at the blood culture contamination rate, huge problem है हमारे यहाँ। ब्लड कल्चर, एक तो पैसे नहीं होते, 2-3 हज़ार रुपए का कल्चर होता है, लेकिन उसको भी अगर हम सही तरह से ड्रॉ नहीं करना आता, कंटेमिनेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस कंटेमिनेशन को हमने रोकना है। सो एवरीवन हैज टू वर्क एवरीवेयर। जस्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट का जिसने सैंपल ड्रॉ किया वो भी एंटीबायोटिक स्टूअरशिप और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। हम लोगों को ये नहीं बताते, अपनी यंग जनरेशन को, ग्राम स्टेन की क्या अहमियत है। 200-300 रुपए का ये नुस्खा है, बट इट कैन सेव लाइव्स, इट एक्ट्स एज ए पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। ये नहीं कि जी ग्राम स्टेन पुरानी चीज है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। सिमिलरली MICs हैं, उसके बारे में हमें बताने की जरूरत है। जो रैपिड चीजें आ चुकी हैं, रैपिड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आ चुके हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ऑब्वियसली दे आर कॉस्टली, बट दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। जीन एक्सपर्ट हैं, वो भी 2 घंटे में आपको रिजल्ट दे देगा। सो वी नीड टू कम अप विद आइडियाज एंड वी नीड टू मेक इकोनॉमिक formulas. Lastly, no one should ever have to fight for their health over an infection they did not have. Burden of hospital acquired infection या healthcare associated infection is huge in our patients, huge. आप कभी डाटा निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि in Pakistan I have seen कार्डियक सर्जरी जो कि क्लीन सर्जरी है, उसका इन्फेक्शन रेट 30% मैंने देखा है। सो कैन यू इमेजिन कि बाकी सर्जरी में क्या होता होगा। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एज पर दिस स्टडी is 40% in our countries, which is huge burden for वो इन्फेक्शन जो उनको होना ही नहीं चाहिए था और उनको हुआ, और हमने फिर एंटीबायोटिक दी और फिर रेजिस्टेंट क्रिएट किया। प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट को हम देखते नहीं है, contaminated hospital environment.
क्या आप समझते हैं हमारे हॉस्पिटल साफ हैं? पेशेंट का फ्लोरा है, इन्वेजिव डिवाइसेस हैं, मेडिकल पर्सनल है, ये एक विशियस सर्कल है। इस सर्कल को हमने तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? अगर हम सिर्फ हैंड हाइजीन को ही देख लें, हम इन लोगों की इतनी अना का मसला बना देते हैं, जब हमारी नर्सेज उनको कहती हैं कि प्लीज वॉश योर हैंड्स, उस पे ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एंड दिस इज द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। 5 moments of hand washing and how to wash hands, this is the backbone of infection prevention control. आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, आपको साबुन और पानी चाहिए या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब चाहिए। एंड कोविड ने हमें बताया कि दिस इज द ओनली वे, वन ऑफ द बिग वे टू स्टॉप कोविड इज डू दिस। और हम करते हैं, बट वी डू नेग्लिजेंस, हम इसको मानते नहीं है। लॉजिक सिंपल है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन कहाँ पे लगाना है, ड्रॉपलेट कहाँ पे करना है, एयरबॉर्न कहाँ पे करना है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वी कैन रियली। लोग, किसी ने बोला कि जी हमारे यहाँ एमआर ऐसे बहुत हो गया, तो मैंने कहा आपके यहाँ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन नहीं होता होगा। तो वो ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न की बात करें, हम मास्क भी लगाते हैं, ये मैंने कहा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास्क, I'm not talking about droplet and airborne. I'm talking about contact precaution is required for all these organisms. You can see MRSA, Acinetobacter, ये सारे CRE, VRE, all these are problems because of we don't have contact precaution, या हम उसको मानते नहीं है। सिंपल चीज है कि हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, जो ट्रांसमिशन को ब्रेक करेगा। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, लेकिन हमें इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम ये सारे बग से हमारी जान छूट जाए। हॉस्पिटल को डिजाइन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। वी डोंट हैव एनी कोर्स ऑन हॉस्पिटल डिजाइन इन पाकिस्तान। कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं है जो बताए कि बनाना कैसे अस्पताल। नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर का एक धूम मच गई जी कोविड के ज़माने में, और लोगों ने अजीब अजीब सी चीज़ें की और सीखा भी, बट रियली क्यों नहीं, इवन बड़े अस्पतालों में ये चीज़ें नहीं होती। दिस इज द टाइम कि हम उस निकल आए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। ये PKLI इज फॉर्चुनेट टू हैव सिंगल रूम वार्ड्स एंड सिंगल रूम ICUs, लेकिन इसकी वजह से शायद बहुत कम इन्फेक्शन रेट होता है। आई नो ये हर जगह नहीं हो सकता, बट इन फ्यूचर whoever builds a hospital, हमें कहना चाहिए कि ये कैसे करना है। वो TB OPD इंडस हॉस्पिटल कम खर्च में, बट इट मेक्स सेंस, डजंट हैव टू बी अ कॉस्टली बिल्ड अप स्ट्रक्चर। लेकिन हमें इंटरफेयर करने की जरूरत है जब हॉस्पिटल बन रहा हो या हम उसके पार्ट हों, उसके मेंबर हों उस कमेटी के, कि सोल्यूशन टू पोल्यूशन इज डाइल्यूशन। हम इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते, क्यों नहीं कर सकते? हम टाइलों वाले फ्लोर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, फॉल सीलिंग अच्छी लगती है, हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें हॉस्पिटल स्ट्रक्चर में नहीं होनी चाहिए, इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। इस तरह की चीज़ों में बग्स ग्रो करते हैं, वहाँ जमा हो जाते हैं, दे ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। क्या हम अगर सिंपल चीज़ें कर लें तो बहुत सारी चीज़ें क्या ठीक नहीं कर सकते? ये बैड प्रैक्टिस एंड फंगस ग्रोइंग ये होता है। सो मैंने PKLI में कंटामिनेटेड सरफेस पे बहुत काम किया, एंड इट रियली पेड मी, क्योंकि हमारे यहाँ ये रेट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ MRSA और एसिनिटोबैक्टर इज ड्रास्टिकली बहुत ही कम है। और आई बिलीव कि अगर सरफेसेस क्लीन होंगे तो ये सारे सरफेसेस क्लीन होंगे तो एक जो सर्कल बनता है इन्फेक्शन का वो रुक जाता है। एक्सोजिनस, एंडोजिनस ऑफ कोर्स पेशेंट का होता है, बट एक्सोजिनस, so we have to work hard for that, because we know these bugs survive from days to weeks on surfaces, and they are alive and they can be transferred. But clean hospitals, I have seen very few clean and hygienically clean hospitals. क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारा एक टीम मेंबर हाउसकीपिंग वाला है, और वो बेचारे को कोई भंगी कहता है, कोई जमेदार कहता है, कोई स्वीपर कहता है। And that is the worst part, कि वो आपका टीम के मेंबर है, आपका हॉस्पिटल को साफ करने आया है, but you treat them like anything। और जो सबसे गरीब और सबसे कम पढ़ा लिखा होगा वो हाउस कीपिंग का मेंबर होता है। This is not the way to treat people who keeps your hospital clean. These all high touch surfaces has to be clean। लिटरेचर भरा पड़ा, we have to do something for that। हमें चंद छोटी चीजें इनको देनी है, चंद बुनियादी चीजों पे हमें खर्च करना है। Why do we spend millions on antibiotics and cannot
give them a proper equipment to clean the hospital. जब इसकी बात आती है तो बजट नहीं होता, और एंटीबायोटिक के लिए बहुत बजट होता है. We have to come out of this wrong impression and wrong perception. All these high touch surfaces are cleaned in our hospital on hourly basis. And then we monitor them obviously with simple gadgets like these gadgets, which is easily available in Pakistan. ये वो इन्होंने volunteers, these are the housekeeping staff in big hospitals in Lahore and Bhavalpur and various part of the world, even in Karachi. So अगर आप अपना अस्पताल इनसे साफ करवाएंगे, and then you talk about antibiotic stewardship, it's not going to work. This होनी चाहिए कि वो अपना आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं. So we applaud our housekeeping staff for their vigorous effort in COVID में भी और COVID के बाद भी. Until unless आप teamwork going to get the proper result. Guidelines मौजूद हैं, हमारे मुल्क की भी guidelines मौजूद है infection prevention control की, free available है, सिर्फ पढ़ने की बात है और implement करने की बात है. तो I hope कि इंशाल्लाह हम सब इस पे अमल करेंगे और कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. Thank you very much और बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Professor Altaf. Now I will request Professor Mujib. Professor of Health Department in Rawalpindi Medical University. Professor Mujib. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम सर. थैंक यू वेरी मच. प्रोफेसर अल्ताफ साहब ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया. मैंने प्रोफेसर साहब को कई दफा पहले भी सुना है. ही इज माशाल्लाह एक्सीलेंट आईडी स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान, और डेफिनेटली इनके हॉस्पिटल की तो हम एग्जांपल देते हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फैसिलिटीज इनके हॉस्पिटल में है वो हर जगह अवेलेबल नहीं. लेकिन जिस तरह डॉक्टर अल्ताफ ने हमें बताया कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, और एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक ये हम डेवलप नहीं करेंगे. मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है. जी आ रही है, आ रही है. तो मैं ये बात कर रहा था, जब तक हम ये फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, कल्चर डेवलप नहीं करने की कोशिश करेंगे, उस वक्त तक विल बी स्टेइंग बिहाइंड. तो हमें बेसिकली जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वी शुड प्रमोट सेफ एंड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर एंटीमाइक्रोबियल यूज, वी शुड एनफोर्स प्रिस्क्रिप्शन ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन. हमने डॉक्टर साहब ने तो ज्यादा हॉस्पिटल की बात की, लेकिन हमारी तो आधी से ज्यादा एंटीबायोटिक केमिस्ट लेवल के ऊपर बिक रही हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं कि कौन ले गया क्या ले गया. और नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, हमारे फूड के अंदर, हमारे एनिमल्स के अंदर, और स्पेशली जो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उसके अंदर मीट एनहांसिंग के लिए एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहे हैं. हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर, इवन फार्मिंग के अंदर एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा मिसयूज हो रही हैं. तो जब तक हम पूरे एनवायरनमेंट को एंटीमाइक्रोबियल फ्रेंडली नहीं करेंगे, उस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली शायद हम इस पे अमल नहीं कर सकेंगे. लेकिन टू स्टार्ट विद, एज अ क्लिनिशियन, मेरा ख्याल है देयर शुड बी अ टीम वर्क. जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बहुत क्लियरली हमें गाइडलाइंस दी कि हर हॉस्पिटल में एक आईपीसी तो मौजूद है, लेकिन वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल टीम जो है, जब तक मिलकर नहीं चलेगी, जब तक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और क्लिनिशियंस का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स तो फिर कुछ कर लेते हैं, जब जूनियर डॉक्टर को कोई नर्स कहती है हाथ धोते हैं, तो वो एक दंगा फसाद वैसे ही शुरू हो जाता है अनफॉर्चुनेटली. सिमिलरली वी शुड वेरी मच क्लियर कि हमने किस बीमारी को ट्रीट करना है. अभी रिसेंट एग्जांपल आप देख लें कि वायरल डिजीज है कोविड, और सारी एजोमैक्स और पता नहीं क्या क्या हमने इस्तेमाल कर दिया, और अभी तक ये 5th सर्ज आ गई है. अभी भी आप जिस प्रिस्क्रिप्शन पे देखें वहां एजोमैक्स 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 ही चल रही है. और अब मतलब वी शुड वेरी क्लियर कि कौन सी मेडिसिन किस जगह इस्तेमाल करनी है. व्हाट आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. फिर जिस तरह अल्ताफ साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि कल्चर लेने का तरीका, कल्चर लेने के जगह के भेजना किस जगह, किसी ऐसी जगह ही भेजते जा रहे हैं जहां हमेशा रिजल्ट यही आता है, नो ग्रोथ नो ग्रोथ नो ग्रोथ.
और मरीज अक्सर अस्पतालों में घर जा चुके होते हैं, 10 दिन के बाद एक रिपोर्ट आ जाती है, आप ढूंढना शुरू करते हैं तो पता चलता है जी मरीज को तो गए हुए 10 दिन हो गए और कल्चर की रिपोर्ट नो ग्रोथ करके वापस आ गई। सिमिलरली हमारे मुल्क के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली अब शायद कोई एंटीबायोटिक भी ऐसी नहीं रहती जो आम लोगों की पहुंच के अंदर है। और एक सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने एंटीबायोटिक के ऊपर अपना रिसर्च और जो वो बजट था वो खत्म कर दिया। उनको एंटीबायोटिक्स बनाने का कोई फायदा ही नहीं होता है। वो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, 2-4 साल वो एंटीबायोटिक्स बिकती हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। वो कहती हैं इससे बेहतर है हम मल्टीविटामिन बनाएं, हम और चीजें बनाएं जहां उनको फायदा हो। तो ये एज अ क्लिनिशियन, एज अ इंटेंसिविस्ट, एज अ डॉक्टर हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जो बचा खुचा एंटीबायोटिक हमारे पास अवेलेबल है हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। और इसमें एज अ सीनियर डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जूनियर डॉक्टर्स को, हम अपनी नर्सेस को रेगुलर बेसिस के ऊपर वार्ड के अंदर भी, और इस तरह के जिस तरह प्रोफेसर बुखारी साहब ने ये वेबिनार का बहुत जबरदस्त इंतजाम किया, वी शुड डिसेमिनेट आवर नॉलेज रिगार्डिंग एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। और मेरा ख्याल है कि थैंक यू वेरी मच, प्रोफेसर साहब ने इतना इन डेप्थ सारा एनालिसिस कर दिया कि कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रियली प्रोफेसर मुजीब, आपने भी बहुत अच्छा पिछला लेक्चर भी आपका बहुत अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। नाउ रेज द हैंड इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क द क्वेश्चन। एक प्रोफेसर अल्ताफ, एक आपसे क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि ये हैं डॉक्टर शमशाद अली, इन्होंने पूछा है कि प्लीज शेड सम लाइट्स ऑन फार्मूलरी रिस्ट्रिक्शन एंड प्री ऑथराइजेशन। पाकिस्तान में है तो नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ बताएं। Right. Formulary restriction और प्री ऑथराइजेशन हॉस्पिटल बेस्ड एक्टिविटीज है एंटीबायोटिक स्टोरशिप की, और ये अच्छे अस्पतालों में ये बाकायदा इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमारे यहाँ भी होता है। हम उन एंटीबायोटिक को प्री ऑथराइजेशन लिस्ट में डाल देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड में, जो हम समझते हैं द बिग गन्स। फॉर एग्जांपल कार्बापेनम, फॉर एग्जांपल टाइगीसाइक्लिन, फॉर एग्जांपल वेंकोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल, ताकि इनका मिसयूज रुक सके। अगर हमारे पास कुछ चॉइसेस दूसरी होती हैं तो हम उनको नहीं रोकते, हम इनको रोकते हैं। और हम इनसे ये कहते हैं कि अगर आपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कोई चीज वार्ड में, तो वो सीधा फार्मेसी में जाती है, उसके अलर्ट जाता है और वो आईडी डॉक्टर के पास या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास आ जाती है कि ये डॉक्टर साहब ये मांग रहे हैं, इन 48 आवर्स के लिए हम इजाजत देते हैं लेकिन उससे ज्यादा के लिए नहीं देते। और फिर एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप राउंड शुरू होता है, ऑनलाइन या फिजिकली, और डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि प्लीज इसको बताएं कि ये आपने जो एंटीबायोटिक लिखी है ये प्रोफाइलेक्टिक यूज के लिए लिखी है या इसको एम्पेरिकल थेरेपी के तौर पे यूज कर रहे हैं या टारगेटेड थेरेपी। सो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उनकी सोच क्या है। अगर वो उसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री होता है तो वो कंटिन्यू की जाती है और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और रेस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक की लिस्ट पे होते हैं, हर एंटीबायोटिक पे नहीं। जैसे मैंने बताया तो हमारे यहाँ तकरीबन 6-7 एंटीबायोटिक है। ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल है कि वो किस एंटीबायोटिक को रेस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक कहते हैं, और उसके लिए उनसे आप वो डिमांड करते हैं, चाहे वो आपके पास सॉफ्टवेयर हो, चाहे आप फिजिकली फोन पे या राउंड पे करते हो। तो इसका ये मतलब होता है। प्रोफेसर अल्ताफ, एक सवाल है प्रोफेसर मंजूर का, डॉक्टर मंजूर का। पहले आपका शुक्रिया अदा किया कि बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने बड़ा अच्छा कैलकुलेशन वाला, व्हाट इज द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर SSI, because we were calculating, in my opinion. आपकी आवाज कट गई। SSI पे क्या? जी, what is the inclusion and exclusion criteria for SSI? ये डॉक्टर मंजूर साहब ने पूछा है, because we were calculating it wrongly in my opinion. SSI का इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इसकी पूछा करंट गाइडलाइंस, बहुत अच्छी गाइडलाइंस ऑनलाइन अवेलेबल है SSI पे, उसकी कैलकुलेशन पे WHO की।
वो मैं इनके साथ शेयर कर सकता हूँ उसको। अगर उन्होंने वो कह रहे हैं रॉन्गली कैलकुलेट किया है तो उसकी क्या बेसिस है, किस तरह वो रॉन्ग हुआ था, चाहे तो मुझे ईमेल कर लें और इस पे हम ठीक। फर्दर बात कर सकते हैं। डॉक्टर सुमैया निजामुद्दीन भी मौजूद हैं। डॉक्टर सुमैया निजामुद्दन, कैन यू गिव सम कमेंट्स अबाउट दिस? क्योंकि प्रोफेसर अल्ताफ ने भी आपका एक रेफरेंस दिया है। डॉक्टर सुमैया जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। तो डॉक्टर अल्ताफ, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर यू स्पीक, और हर बार ऐसा लगता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। बेसिकली ये हमारे अकेले का काम तो नहीं है। ये हॉस्पिटल में जैसे सर ने मेंशन किया, हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम है, हमारी इन्फेक्शियस डिजीजेस के कंसल्टेंट्स हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जो स्पेशली ट्रेन्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस फार्मासिस्ट हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमारे अपने लोगों ने बनाया था, जिसके थ्रू हम अपनी एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही जो है एंटीबायोटिक कंट्रोल और उसकी यूजेज और उसकी इंडिकेशन जो है हमारे पास चलती है। और हर बार जब भी हमें लगता है कि कोई करेक्टिव मेजर की ज़रूरत है, तो वो भी एवरीबडी इज़ वेरी ओपन टू फिक्स इट एंड टू इम्प्लीमेंट इट। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग ऑन बोर्ड हों और सब लोग एक साथ इसके साथ चलें, क्योंकि फिर अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि कहीं बाहर के कंसल्टेंट्स या बाहर के डॉक्टर्स जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि ये आपने बताया नहीं है या आपने प्रिस्क्राइब नहीं किया, और फिर उनको शुरू से फिर बेसिक माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी सिखानी पड़ती है कि फला एंटीबायोटिक फला बग पे काम नहीं करती। तो अब द थिंग इज कि हम सब मौजूद हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए, सिखाने के लिए, बट इट्स ऑल अबाउट कि कौन सामने आना चाहता है, कौन हमारे साथ काम करना चाहता है या सीखना चाहता है। तो एवरीबडी हैज टू बी टुगेदर ऑन दिस। एंड वंस अगेन कि अगर किसी जी, को थैंक यू डॉक्टर कोई चीज सुमैया। समझ एक नहीं आ रही। सवाल है प्रोफेसर अल्ताफ आपसे। जी जी, एक सवाल है प्रोफेसर अल्ताफ आपसे। व्हाट इज द रोल ऑफ यूजिंग ticoplenin in prophylaxis of MRSA? Can the नहीं, patient be started on tico on or vancomycin? Please guide. देखें प्रोफाइलेक्सिस यूज, मैं वो यही कह रहा हूँ कि ये रेस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक है। प्रोफाइलेक्सिस तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इसका प्रोफाइलेक्सिस हो। दैट इज नहीं वन ऑफ द चाहेंगे, मेन एरिया, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दैट इज द वन ऑफ द मेन एरिया जहाँ पे मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक होती है। हरगिज हरगिज ये एंटीबायोटिक हम प्रोफाइलेक्सिस यूज नहीं करेंगे। फॉर आई थिंक डॉक्टर मुजीब कैन अंडरस्टैंड वेल कि ये इस तरह की ब्रॉड स्पेक्ट्रम और कॉस्टली एंटीबायोटिक जो 7-8 हज़ार 10 हज़ार की पर डे जिसकी है, उसको प्रोफाइलेक्सिस यूज क्यों करेंगे? हम किस चीज को हमने सोचना होता है थोड़ा सा कि हम किस चीज से मरीज को बचाना चाह रहे हैं। बिलीव मी, हम सेफाजोलिन यूज करते हैं विच इज अ वेरी टाइनी सर्जरी एंटीबायोटिक। अगर सर्जरी आप से पहले बिल्कुल कुछ प्रोफेसर साहब बिल्कुल यूज करते हैं सर्जरी से पहले। बिल्कुल, सो वो एक 200 रुपए की दवा है, और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि वो चीप है, बल्कि मकसद है कि हमें ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन जो स्किन कटने के बाद अंदर जा रही है, सो उसको हमने बचाना है वुंड इन्फेक्शन से, एंड दैट इज इनफ। तो हमें इस बिग गन्स की तरफ तो जाना ही नहीं, बिल्कुल इसी का मकसद एंटीबायोटिक स्टोरशिप है। जी प्रोफेसर अल्ताफ, डॉक्टर साजिदा शाहीन ने भी आपसे पूछा है कि WHO वाला क्राइटेरिया ऐसा ही। डॉक्टर साजिदा, यू कैन आस्क। डॉक्टर साजिदा, यू कैन अनम्यूट योर माइक। जी डॉक्टर साजिदा। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर जी कैसे हैं सर आप से डॉक्टर रिक्वेस्ट। साजिदा? ठीक हैं? सर जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ऐसे गाइडलाइंस सर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ये रिक्वेस्ट थी। थैंक यू। ठीक मैंने ठीक अपना ईमेल ठीक। भेज दिया है ग्रुप में, आई थिंक आप लोग देख सकते हो चैट बॉक्स में। सो मैं जो मांगेगा मैं उसको भेज दूंगा। डॉक्टर लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राशिद साहब आप पूछना चाहते हैं? राशिद साहब, प्रोफेसर राशिद साहब। एनी काजी साहब, प्रोफेसर काजी साहब, डॉक्टर काजी साहब। जी सर। डॉक्टर काजी साहब, जी सर। Okay. Sir, thank you very much. It was really wonderful presentation.
थैंक यू प्रोफेसर अल्ताफ। ये बहुत ही अहम टॉपिक था जिस पे आज आपने बात की है, और एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि हम अपने तमाम हथियार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाय करते जा रहे हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसान अल्फाज में आपने इसे एक्सप्लेन किया और इसकी इम्पोर्टेंस उजागर की। थैंक यू वेरी मच। अब बुखारी साहब, मैडम सलमा कुंडी इज देयर। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें आप। मैडम सलमा कुंडी, our president of PMA Center is there. प्रोफेसर मैं सलमा कुंडी, चाहूंगा कि मैडम सलमा मैडम कुंडी। सलमा Assalamu कुंडी alaikum. join. Thank you, जी, Qazi madam, Sab. Thank you, Mulazim Sab. Assalamu alaikum, everyone. It was a wonderful talk, Professor Altaf Ahmed Sab. Like, it was जी मैडम, excellent. वालेकुम सलाम। हम हमारे साथ जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं मेडिकल कॉलेज की, चूंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, मुलाजिम साहब भी हैं, तो इंशाल्लाह अपने हॉस्पिटल्स में भी हमारी होती है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। लेकिन मैंने इनसे एंटीबायोग्राम का, एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का ये कोई फीडबैक नहीं ली, जो कि मंडे को जाते ही मैं इसके ऊपर मीटिंग करूंगी एंड वी आर गोइंग टू डू इट। अगर मैं करूंगी, आई एम श्योर मुलाजिम साहब ने आज ही जी कर मैं भी देनी है। और इंशाल्लाह, मैं भी इंशाल्लाह, बिल्कुल। इस तरह और लोग भी हमारे यहाँ सुन रहे हैं, हर एक कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं अपने अपने हॉस्पिटल्स में। प्लीज लेट्स वर्क ऑन इट। एंड अल्ताफ साहब ने अपना ईमेल एड्रेस भेज दिया है, कोई मसले हो तो वी विल कांटेक्ट हिम। हैट्स ऑफ टू यू अल्ताफ साहब, थैंक यू सो मच। एंड आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स and everybody here on this forum today जी on behalf मैडम of सलमा PMA। कुंडी, एक रिक्वेस्ट आई है, उन्होंने कहा है कि हमें बल्कि ये बताया जाए हाउ टू मेक एंटीबायोग्राम इन हॉस्पिटल। तो ये हम एक कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो उन्होंने भेजा है कि हमें बताएं कि हाउ टू डेवलप एंटीबायोग्राम इन द हॉस्पिटल। लेट्स वी विल कंडक्ट द मीटिंग एंड वी विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अल्ताफ एंड अदर पीपल रिलेटेड टू दिस वन कि वो बताएं। एक जूम मीटिंग अरेंज करना पड़ी तो हम जूम मीटिंग एक वेबिनार टाइप की कर लेंगे। Thank you very much. Now we are concluding this seminar. Inshallah, hope next meeting next Sunday at 11 o'clock we will meet. Thank you so much, Professor Altaf. Thank you so much, Professor Mujib, and thank you very much, everyone. Thank you very much, Madam. Thank you, Qazi Saab, for arranging this. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa थैंक यू वेरी मच barakatuh. जी, बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। Thank you. Allah Hafiz ji, Allah Hafiz. Allah Hafiz.